خبر آپ کو دیں، بہاولپور میں پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی مالی مشکلات سنگین ہونے لگیں۔ لانڈری فراہم کرنے والی کمپنی کے بھی واجبات ادا نہ ہو سکے۔ کمپنی نے دسمبر کے آخر تک ادائیگی نہ ہونے پر سروس بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ آکسیجن سروسز بھی معطل ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اہم خبر ہے بہاولپور سے، بہاولپور میں پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی مالی مشکلات سنگین ہونے لگیں۔ بہاولپور کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ کارڈک سینٹر کے مالی معاملات سنگین، واجب الادا رقم 12 کروڑ سے تجاوز کر گئی۔ اینجیوگرافی کی مد میں 7 کروڑ جبکہ لانڈری، آکسیجن اور دیگر کمپنیوں کے 5 کروڑ واجب الادا ہے۔ خراب اینجیوگرافی مشین کی مرمت کے حوالے سے بھی کوئی پیش رفت سامنے نہ آ سکی۔ مریضوں کا بیک لاگ سینکڑوں تک پہنچ چکا، انہیں 3 ماہ تک کا ٹائم دیا جانے لگا۔ جی، میں قصاب کا کام کرتا ہوں، الحمدللہ دکان ہے قصاب کی، تو اللہ کا شکر ہے کہ جب سے پیشنٹ ہے میں کام ٹھیک کر رہا ہوں الحمدللہ، اور اب کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو میڈیسن کھا رہے ہیں؟ جی 3 گولیاں کھا رہا ہوں جی میں۔ کارڈک سینٹر میں لانڈری فراہم کرنے والی کمپنی نے واجبات کی عدم ادائیگی پر سروسز بند کرنے کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ دسمبر کے آخر تک واجبات کلیئر نہ ہوئے تو لانڈری سروس بند کرنے کی دھمکی بھی دے دی۔ ہسپتال میں آکسیجن سروسز بھی معطل ہونے کا خدشہ پیدا ہو چکا۔ ذرائع کے مطابق ہسپتال میں آکسیجن فراہم کرنے والی کمپنی کے بھی 2 کروڑ روپے بقایا ہیں۔ مریضوں کا کہنا تھا کہ ہسپتال کا کوئی پرسان حال نہیں، دل کے مریضوں کے پاس ایک دن کا بھی وقت نہیں ہوتا، جبکہ ہسپتال انتظامیہ دل کے مریضوں کو مہینوں کا وقت دے رہی ہے۔ میڈیسن ہے وہ بھی یہاں نایاب ہوتی نظر آ رہی ہیں، کوئی میڈیسن نہیں ملتی، بس یہ ہے کہ مریضوں کو یہاں چکر لگائیں، پرچی وہاں بھیج دیتے ہیں، وہاں بھیج دیتے ہیں، کوئی ایسے فنڈ وغیرہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ دوائیں ہونے کا نہیں، دوائیں دینا نہیں کوئی، 400-500 کرایہ بھر رہا ہوں، مکالا مالتے ایک پتہ گھنتے ویندے پہ ہے۔ ہسپتال انتظامیہ نے اینجیوگرافی مشین کی مرمت کے لیے 55 ملین روپے کے فنڈز جلد جاری ہونے کا عندیہ دے دیا ہے۔ ایم ایس ڈاکٹر گوہر بشیر کے مطابق دسمبر کے اختتام تک اینجیوگرافی مشین کی مرمت کروا لی جائے گی۔ کیمرامین شاہ سکلین کے ساتھ طاہر جودیانہ، روہی، بہاولپور۔ آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی پاور لوم انڈسٹری بدحالی کا شکار۔ بجلی اور سوتی دھاگے کی غیر مستحکم قیمتوں کے باعث پاور لوم مالکان شدید پریشان ہیں۔ کہتے ہیں حکومت نے اب بھی توجہ نہ دی تو یہ صنعت جلد ہی دم توڑ جائے گی۔ ملک کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی سمجھی جانے والی پاور لوم انڈسٹری تباہی کے دہانے پر۔ بجلی اور سوتی دھاگے کی قیمتوں میں اضافے سے پاور لوم مالکان انڈسٹری بند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مالکان کہتے ہیں بجلی کے بھاری بل ادا کر کے تھک گئے ہیں۔ ہمارا گورنمنٹ سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ ایک تو یہ بجلی بہت زیادہ مہنگی ہوئی پڑی ہے، اگر ہم نے سولر انسٹال کروایا ہے تو اس میں اب نئے قوانین نکال دیے گئے ہیں اور اس میں ہمیں وہ بھی مشکلات ہو رہی ہیں، اور کام تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہمیں کوئی فیسلٹیز ملیں گی تو ہم اپنے مزدوروں کو کچھ دیں گے، کچھ ہمیں فائدہ ہوگا تو ہم اپنے بھی مزدوروں کو بھی فائدہ دیں گے۔ پاور لومز بند ہونے سے جہاں مالکان پریشان ہیں، وہیں ملازمین بھی گھر کا چولہا ٹھنڈا ہونے کا رونا روتے نظر آتے ہیں۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ اگر مالکان نے لومز بند کر دیں تو پھر کئی گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ مزدور آدمی ہوں، یہاں پہ کام کار نہیں ہے، بجلی مہنگی ہونے والے حکومت کو چاہیے کہ کچھ بجلی سستی کرے اور ہمارے بارے کوئی توجہ کی جائے۔ ہم 500-600 روپیہ کمانے والے مزدور آدمیوں کے گزاری بہت ہو رہا ہے، ہم پریشان ہیں، ہم کو چاہیے کہ بجلی سستی کی جائے۔ پاور لوم مالکان نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو وہ لومیں بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ حالیہ بجلی کی غیر مستحکم قیمتوں اور سوتی دھاگے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے پاور لوم انڈسٹری مالکان شدید مالی بحران کا شکار نظر آتے ہیں۔ ان کی جانب سے کہنا ہے کہ اگر حکومت نے اب بھی توجہ نہ دی تو یہ انڈسٹری جلد دم توڑ جائے گی۔ کیمرامین غیاض علی کے ساتھ سید زہیر بخاری، روہی، ملتان۔ کسٹم انفورسمنٹ ملتان کی نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں۔ شہر کے مختلف مقامات سے نان کسٹم پیڈ گاڑیاں تحویل میں لے لی گئی۔ کسٹم حکام کے مطابق حالیہ کارروائیوں میں 19 گاڑیاں پکڑی گئیں۔ ملتان میں چلنے والی نان کسٹم پیڈ گاڑیاں کسٹم کے ریڈار پر۔ کسٹم انفورسمنٹ نے 1-2 نہیں، شہر سے 19 نان کسٹم پیڈ گاڑیاں تحویل میں لے لی۔ پکڑی گئی گاڑیوں میں ٹویوٹا پریس، ویٹس، لینڈ کروزر، BMW اور مرسیڈیز شامل ہیں۔ کسٹم حکام کا کہنا ہے کہ تحویل میں لی گئی گاڑیوں کی مالیت 10.5 کروڑ سے زائد ہے۔ گاڑیوں کو تحویل میں لینے کے بعد کسٹم
कस्टम हाउस मुंतकिल कर दिया गया, जबकि कानूनी कार्रवाई के बाद गाड़ियों को नीलाम किया जाएगा। कस्टम हुकाम के मुताबिक नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां कलेक्टर कस्टम सुमेर मुस्तनसर तारड़ की हिदायत पर की गई। सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। आपको बताएं, मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता महंगाई की लहर है। सरकारी निर्खों में कमी के बावजूद मार्केट में अशिया खुरनोश 20 से 50% महंगी फरोख्त की जाने लगी। खुद साख्ता महंगाई की वजह से गरीब आवाम के लिए सब्जियां और फल खाना तकरीबन नामुमकिन हो गया। मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई अरूज पर, सब्जी और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गरीब आदमी के लिए मंडी में सबसे सस्ती सब्जी बंद गोभी रह गई है। सलाद में इस्तेमाल होने वाली बंद गोभी को गरीब आदमी कितने दिन खाए। बंद गोभी का सरकारी रेट 20 रुपए, जबकि मार्केट में 40 से 50 रुपए फी किलो दस्तयाब है। सरकारी नरखों में आलू 30, अदरक 290, भिंडी 140 और प्याज 60 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में आलू 50, अदरक 350, भिंडी 160 और प्याज 90 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में शिमला मिर्च 110, लहसुन 290 और मटर 90 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में शिमला मिर्च 150, लहसुन 350 और मटर 160 रुपए फी किलो दस्तयाब है। फल भी आम शहरियों की पहुंच से बाहर है। सरकारी नरखों में लड़काना अमरूद 190, कंधारी अनार 540, पपीता 310 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में लड़काना अमरूद 250, कंधारी अनार 650, पपीता 450 रुपए फी किलो दस्तयाब। सरकारी रेट लिस्ट में सेब 318, सिंगाड़ा 130, शकरकंदी 100 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में सेब 400, सिंगाड़ा 200, शकरकंदी 150 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी नरखनामे के मुताबिक फ्रूटर 120, किन्नू 140 रुपए किलो, जबकि केले 130 रुपए फी दर्जन है। चिकन का सरकारी रेट 583 रुपए फी किलो, जबकि अंडे 354 रुपए फी दर्जन है। इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करे ताकि शहरी सस्ते और मियारी सब्जियां फल खरीद सके। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सलमान ज़बीर, रोही, मुल्तान। मुल्तान में सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस में क्रोम बुक्स तकसीम करने का फैसला। IBCC को क्रोम बुक्स की तकसीम में मरकजी राब्ताकार मुकर्रर कर दिया गया। तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने के लिए प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। तमाम बोर्ड्स के मातहत अदारे क्रोम बुक्स फराहम करने के अमल का हिस्सा होंगे। तमाम अदारों को तलब करदा मालूमात 28 दिसंबर तक जमा कराने की हिदायत। डिजिटल तकसीम कम करने और नई नस्ल को टेक्नोलॉजी से मजबूत करने का मंसूबा बनाया गया है। अहम खबर है, मुल्तान से अपडेट करें। मुल्तान में सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस में क्रोम बुक्स तकसीम करने का फैसला किया गया। IBCC को क्रोम बुक्स की तकसीम में मरकजी राब्ताकार मुकर्रर किया गया। तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग करने के लिए प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। तमाम बोर्ड्स के मातहत अदारे क्रोम बुक्स फराहम करने के अमल का हिस्सा होंगे। तमाम अदारों को तलब करदा मालूमात 28 दिसंबर तक जमा कराने की हिदायत। डिजिटल तकसीम कम करने और नई नस्ल को टेक्नोलॉजी से मजबूत करने का मंसूबा बनाया गया है। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 14 अरब रुपए के फंड मंजूर। फंड की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 53वें इजलास में दी गई। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर नईम राउफ ने की। CERT और DR डेटा सेंटर के कयाम के लिए 1 अरब 45 करोड़ रुपए मंजूर। पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन पर प्रोजेक्ट्स के लिए फंड मंजूर। तहसील लियाकतपुर और रुझान के लिए 2 अरब 20 करोड़ रुपए के फंड मंजूर किए गए। तहसील नूरपुर थल जिला खुशाब के लिए 1 अरब 17 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। आपको बताएं, तहसील अलीपुर, शुजाबाद और तोनसा के लिए 2 अरब 60 करोड़ रुपए के फंड मंजूर किए गए। तहसील कोट मोमिन जिला सरगोदा के लिए 1 अरब 26 करोड़ 40 लाख रुपए के फंड मंजूर किए गए। अहम खबर है, सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 14 अरब रुपए के फंड मंजूर कर लिए गए। फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 53वें इजलास में दी गई। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर नईम राउफ ने की। CERT और DR डेटा सेंटर का काम के लिए 1 अरब 45 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट के लिए फंड्स मंजूर किए गए। तहसील लियाकतपुर और रुझान के लिए 2 अरब 20 करोड़ के फंड मंजूर किए गए। तहसील नूरपुर थल जिला खुशाब के लिए 1 अरब 17 करोड़ रुपए के फंड मंजूर किए गए। तहसील अलीपुर, शुजाबाद और तोनसा के लिए 2 अरब 60 करोड़ रुपए के फंड मंजूर किए गए। तहसील कोट मोमिन जिला सरगोदा के लिए 1 अरब 26 करोड़ 40 लाख के फंड मंजूर कर लिए गए। मियां चन्नू में साल 2023 के अफसोसनाक कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। सगे बेटे को कत्ल करने पर मुजरिम अब्दुर्रहमान सजाए मौत का हकदार करार। एडिशनल एंड सेशन जज चौधरी जुल्फकार अली ने मुजरिम को सजाए मौत सुनाई। मुकदमे की पैरवी एडवोकेट चौधरी सईद अहमद ने की। अहम खबर है, मियां चन्नू में साल 2023 के अफसोसनाक कत्ल का फैसला सुना दिया गया।
सगे बेटे को कत्ल करने पर मुजरिम अब्दुर्रहमान सजाए मौत का हकदार करार। एडिशनल एंड सेशन जज चौधरी जुल्फकार अली ने मुजरिम को सजाए मौत सुनाई। मुकदमा की पैरवी एडवोकेट चौधरी सईद अहमद ने की। खबर है मियां चन्नू से साल 2023 के अफसोसनाक कत्ल का केस का फैसला सुना दिया गया। सगे बेटे को कत्ल करने पर मुजरिम अब्दुर्रहमान सजाए मौत का हकदार करार। एडिशनल एंड सेशन जज चौधरी जुल्फकार अली ने मुजरिम को सजाए मौत सुनाई। हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने डीआरसी के बेदखली हुक्म पर अमल दरामद रोक दिया। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने गुलाम जिलानी आफ्ताब की रिट पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। वकील शेख जमशेद हयात ने डीआरसी का इख्तियारात को हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा, डीआरसी को बेदखली, कब्जा छुड़ाने या बहाली का कोई कानूनी इख्तियार हासिल नहीं। तहफ़्फ़ुज़ जायदाद ऑर्डिनेंस के तहत बेदखली का इख्तियार सिर्फ ट्रिब्यूनल को हासिल है। चंद घंटों में मकान खाली करने का डीआरसी हुक्म कानून के खिलाफ है। अहम खबर है, हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने डीआरसी के बेदखली हुक्म पर अमल दरामद रोक दिया है। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने गुलाम जिलानी आफ्ताब की रिट पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। वकील ने डीआरसी के इख्तियारात को हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा, डीआरसी को बेदखली, कब्जा छुड़ाने या बहाली का कोई कानूनी इख्तियार हासिल नहीं। तहफ़्फ़ुज़ जायदाद ऑर्डिनेंस की तहत बेदखली का इख्तियार सिर्फ ट्रिब्यूनल को हासिल है। चंद घंटों में मकान खाली करने का डीआरसी हुक्म कानून के खिलाफ है। मलकियती जायदाद ऑर्डिनेंस 2025 के तहत ट्रिब्यूनल्स के लिए मेंबर तैनात करने का फैसला। मुल्तान समेत तमाम अजला में मेंबर तैनात होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुल्तान में रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद रशीद कमर मेंबर तैनात कर दिए गए। डीआरसी के फैसले के खिलाफ अपील के लिए मेंबर ट्रिब्यूनल अहकाम जारी करेंगे। मलकियती जायदाद ऑर्डिनेंस 2025 के तहत ट्रिब्यूनल्स के लिए मेंबर तैनात करने का फैसला है। मुल्तान समेत तमाम अजला में मेंबर तैनात होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुल्तान में रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद रशीद कमर मेंबर तैनात कर दिए गए। डीआरसी के फैसले के खिलाफ अपील के लिए मेंबर ट्रिब्यूनल अहकाम जारी करेंगे। मुजफ्फरगढ़ कम्प्रिहेंसिव स्कूल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो ना बन सका, नशइयों को महफूज ठिकाना जरूर मिल गया। एक साल कबल साबिक डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बुनियाद रखी थी, मगर काम शुरू ना हो सका। मुकामी खिलाड़ियों का कहना है पवेलियन मौजूद नहीं और ना ही ग्राउंड में पीने का साफ पानी दस्तयाब है। मजीद तफसीलात जाने आमिर डोगर की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ में खेल के मैदान इन दिनों में वीरान हैं क्योंकि ग्राउंड्स की हालत जार इंतहाई खराब है। मुजफ्फरगढ़ के वस्त में मौजूद कम्प्रिहेंसिव स्कूल का स्पोर्ट्स ग्राउंड मंसूबा इल्तवा का शिकार है। ग्राउंड में अरसा दराज से क्रिकेट और हॉकी के मैचेस नहीं हुए। मकामी खिलाड़ियों का कहना है कि अपनी मदद आप के तहत ग्राउंड की हालत ज़ात बेहतर करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। कई बार डिप्टी कमिश्नर और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को दरख्वास्त दी मगर किसी ने नोटिस नहीं लिया। जिस तरह से हम आपको कहना चाहते हैं कि इस ग्राउंड में अगर हम खेलने आए तो यहाँ पे मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ती है। इसके साथ साथ यहाँ पे कोई बैठने की जगह नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे झाड़ियाँ मौजूद हैं, पीछे यहाँ पे इधर नशाई बैठे रहते हैं। मकामी खिलाड़ियों का कहना है कि चंद साल कबल तक ग्राउंड में बड़े टूर्नामेंट्स में जनूबी पंजाब भर से टीमें आती थीं, मगर अब ना तो क्रिकेट की पिचेस बाकी हैं और ना ही पवेलियन मौजूद है। जानवर बंधे हुए हैं, यहाँ दूर दूर से बच्चे खेलने आते हैं, लेकिन यहाँ गंदगी इतनी है, नशई है, हर जगह गंद मचाया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ खेलने में मसाइल होते हैं। खिलाड़ियों ने मजीद कहा कि वॉकिंग ट्रैक भी जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। लाइट्स ना होने की वजह से रात के औकात में खेलों की सरगर्मियां नहीं हो सकती। आला हुकाम सूरत हाल का नोटिस लें। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़।